Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Morning, ma'am. students. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Students, let us continue. Very less students have joined now. Why? Only 23 students are here. Rest of students? Good morning, ma'am. Good morning. Yes. हाँ कुछ उसमें ऑटोमेटिक कर दीजिए कि okay. Let us students. Okay, let us continue our lesson. Okay. Yes, ma'am. Okay, students. What we have discussed yesterday? Yes. Tell me what we have discussed. And we have revised French Revolution. We have revised French Revolution. Okay. And in that Good topic, morning, what we ma'am. have studied? Yes. Good morning. What we have studied? Ma'am, in second chapter, we studied about liberals, radicals, and conservatives. Voice is very low. Why? Inspired by the French Revolution. I'm not able to Liberals, listen, students. radicals, What? We were learning about Radical conservatives. yes, liberals, radicals, and radicals. conservatives. First, we have discussed about the French Revolution. We have revised that topic. After become that constitution. topic, what was the topic? The age of social change. In that topic, we have discussed about the French Revolution, how the society was changing after French Revolution. Today, we have to study about those topics which were discussed earlier. That means which were discussed yesterday. Today, we will read that topic. Okay, but first I want to know, do you know about the centuries? Several times we talk about 19th century, 18th century, 17th century. What do you mean by 18th century? Let me know. 1700 to 1799. Yes, 1701 to 1799. 1799. Okay. And in 1800 that becomes 19th century. 19th 19th century. Okay, very good. Let us, yes. Okay, let us continue the lesson and let us read today. Line by line we will read today. And if there is any doubt, then you are welcome. You can ask me. Okay. Let us start. Socialism in Europe and the Russian Revolution. Yesterday we have discussed about socialism. What is here connection with Russian Revolution? How this social thinking of the people emerged by the several philosophers which came in the French Revolution. Their thinking evolved at that time during the French Revolution. Now let us see the lesson, what is given here. Students, here again the revision is given, and if there is any doubt, please ask me, okay? The age of social change, how the society was changing. कैसा वो ऐसा युग था कि समाज परिवर्तित हो रहा था, समाज में परिवर्तन आ रहा था, social change. In the previous chapter, you will read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. Previous chapter में, यानी कि पिछले लेसन में, यानी कि फर्स्ट लेसन जो तुम्हारा था, उसमें तुम लोगों ने क्या पढ़ा? फ्रेंच
रेवोल्यूशन और कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में तुम्हारे आइडियाज ऑफ फ्रीडम इक्वलिटी सर्कुलेटेड हो गए। यही पढ़े थे ना तुम लोग। अब देखो, the French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या दिया? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बैटरी फुल Idea of equality, liberty, and fraternity. who is talking what idea of? Yes, Equality, liberty, and fraternity. yes, we have discussed about that. Today we are reading that chapter, and if there is any doubt you are welcome to ask. Okay, what happened? Mohammed Kaif, what happened beta? मैम एक बार फिर से बता दीजिए, क्या हुआ? एक बार फिर से बता दीजिए मैम। अरे वही तो बता रहे हैं, इसीलिए तो बोले कि कल जो हमने डिस्कस किया आज रीडिंग करके उसको समझा रहे हैं। कल क्लास मिस भी कर दिए थे वो आज समझ जाएंगे। ना आपकी वीडियो ही नहीं आ रही है। अब तो तुम्हारे Ma'am, यहाँ page number. नेटवर्क प्रॉब्लम है तो मुझे क्या करना उसके लिए बोलो, क्या किया जाए? वीडियो तो सब जगह विजिबल है, अब तुम्हारे पास वीडियो नहीं आ रहा है तो क्या किया जाए? आ रहा है। उसी में कोई कह रहा है कि आ रहा है, कोई कह रहा है नहीं आ रहा है। मैम आ रहा है मैम। मैम सबको म्यूट करिए, बीच में ये लोग डिस्टर्ब करते रहेंगे। मैम ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन। मैम पेज नंबर। पेज नंबर तुम्हारा लेसन का स्टार्टिंग है एकदम। पेज नंबर 25। Okay students, let us start. Here we have to study about the social change which was taking place after the French Revolution. French Revolution तो हम लोगों ने पढ़ लिया, कल भी हम लोगों ने रिवाइज किया ना उसे। अब हमें क्या पढ़ना है? सोशल चेंज। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या सामाजिक परिवर्तन आया, आज हमें उसके बारे में चर्चा करनी है। Here we have to study about that. In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. पिछले लेसन में हम लोगों ने क्या देखा? पावरफुल आइडियाज। पावरफुल आइडियाज मतलब वो विचारधाराएं जो काफी शक्तिशाली थी, जिसने पूरे यूरोप क्या पूरे दुनिया को झकझोर कर रख दिया। लोगों के मन में ये विचार आ गई कि कैसे हमें स्वतंत्रता मिलना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्यों हम किसी राजा के अधीन रहे। तभी तो लुईस 16 के खिलाफ इन लोगों ने आवाज उठाई और इनकी आवाज इतनी बुलंद हो गई कि एक दिन राजा को तख्ता क्या करना पड़ा, छोड़ देना पड़ा उसे। इन लोगों ने फांसी तक, गिलोटाइन स्टोन तक पहुंचा दिया। कितनी बड़ी बात है। उस समय किसी भी जनता के पास इतना पावर नहीं था, इतना उनके पास नॉलेज भी नहीं था कि हम कभी भी राजा के खिलाफ एक शब्द भी बोल सकते हैं, कोई आवाज उठा सकते हैं। बट दिस हैपेंड। व्हाट हैपेंड? द किंग वाज सेंट टू गिलोटाइन एंड द सेम फेट वाज देयर विद द क्वीन आल्सो। सेम यही काम रानी के साथ भी हुआ, उसे भी गिलोटाइन पर भेज दिया गया। तो इतनी बड़ी आइडियोलॉजी की ताकत है, विचारधारा की ताकत इतनी मजबूत थी कि सारे लोगों का मन परिवर्तन हो गया। सबको लगने लगा नहीं, हमारे भी अधिकार हैं, इंडिविजुअल राइट्स भी कुछ होते हैं, लोगों के भी कुछ विचारधाराएं होती हैं, हमें भी कुछ चीजों की जरूरत होती है। केवल हम राजा के ही अधीन रह करके अपना सारा जीवन बिता दें, ये उचित नहीं। और इसीलिए इन लोगों ने ये चेंज लाना चाहा सोसाइटी में। दैट वाज अ चेंज which came in the society. The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक मार्ग दिखा दिया, एक रास्ता खोल दिया समाज के लिए, जिस आधार पर लोग समाज को नए रूप से परिवर्तित कर सके। ड्रामेटिक चेंज मतलब वेरी फास्ट चेंज, तीव्र परिवर्तन। और इसके बाद क्या हुआ? As we have read, before the 18th century, society was broadly divided into states and orders. It was the aristocracy and church which controlled economic and social power.
वी हैव स्टडीड दिस इन द प्रीवियस लेसन कि उस समय सोसाइटी में क्या था, मेनली सोसाइटी 3 वर्गों में बटी हुई थी। एक था नोबल्स, जिसको हम लोगों ने यहाँ पढ़ रखा है एरिस्टोक्रेसी, दूसरा था क्लर्जी, जिसको कि हम यहाँ चर्च के रूप में देख रहे हैं, और थर्ड कैटेगरी जो था वो कॉमन्स का था। तो ये 3 कैटेगरी में पूरी समाज वहां की बटी हुई थी, और सारा पावर कौन एंजॉय करते थे? एरिस्टोक्रेट्स, दैट मीन्स नोबल्स, और क्लर्जी, दैट मीन्स चर्च। केवल इन्हीं लोगों को अधिकार था सारा, कॉमन्स के पास तो कोई अधिकार ही नहीं था। ये चाहे लाख डिमांड करे, लेकिन ये दया दृष्टि के ऊपर डिपेंड करता था कि क्या राजा चाहता है, नोबल्स क्या चाहते हैं, क्लर्जी को किस तरह का टैक्स देना, ये सारी चीजें अब बेचारे कॉमन्स को झेलना पड़ता था। ऐश करते थे कौन? नोबल्स और क्लर्जी, और मेहनत कौन करते थे? कॉमन्स। तुम लोगों ने फर्स्ट लेसन में एक स्पाइडर एंड फ्लाई की तस्वीर भी देखी है, वो फर्स्ट ही पेज पे एकदम फ्रंट पर, उसमें क्या दिखाया गया है कि स्पाइडर की तरह ये जो नोबल्स हैं और क्लर्जी है, ये जाला बुनते रहते हैं। मेनली वहां नोबल्स को ही दिया है, और फ्लाई की तरह बेचारा ये कॉमन है। यदि एक बार उस मकड़ी के जाले में फंस जाता है, एकदम यहाँ पे दिया हुआ है, पेज नंबर कौन सा है तुम्हारा बताया, हाँ ये रहा, पेज नंबर 5 पे है, देखो यहाँ पे दिया गया है द स्पाइडर एंड द फ्लाई। तो यहाँ क्या दिया गया है, ऊपर देखो मकड़ी और एक मक्खी की तस्वीर दी गई है, कहा गया है कि एकदम मक्खी की तरह है। एक बार यदि वो शिकंजे में फंस जाए, कॉमन्स यदि जाके फंस जाए किसके पास? क्लर्जी के पास, नोबल्स के पास, तो वो उनका खून चूसने लगते हैं, और तब तक उन्हें नहीं छोड़ते जब तक कि वो मर नहीं जाते। उसी तरीके से होता है, फ्लाई एक बार यदि मकड़ी के जाले में फंस जाती है तो लाख छटपटाती है, वो निकल नहीं पाती, अंततः वो मर जाती है उसमें। तो यही चीज यहाँ दिया गया कि सोशल जो ऑर्डर था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। मेन 2 वर्ग जो थे ऊपर के, उसमें जो प्रिविलेज एंजॉय करने वाले थे वो कौन थे? पहला नोबल्स, उसके बाद क्लर्जी। कॉमन्स बेचारे के लिए कोई अधिकार नहीं था। इसीलिए जो कॉमन्स में भी अमीर वर्ग के लोग थे, अपर लेयर के जो लोग थे, जो प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, इन लोगों ने अपना एक अलग मंच बनाया, और उसी के तहत बहुत सारे फिलोसफर्स उभर करके आए। इन लोगों ने अपने विचारों को रखा, और वही विचारधारा, वही आइडियोलॉजी पूरे फ्रांस को क्या, पूरे दुनिया को झकझोर कर रख दी, और उसका अंजाम हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सडनली आफ्टर द रिवॉल्यूशन, और तुरंत ही अचानक रिवॉल्यूशन के बाद, इट सीम पॉसिबल टू चेंज दिस, ये लगने लगा कि अब परिवर्तन किया जा सकता, पॉसिबल टू चेंज, इसको परिवर्तित किया जा। पहले लगता था कि अरे भाई राजा को हटा के कौन शासन चलाएगा, राजा क्या है? डिवाइन थ्योरी थी, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था डिवाइन थ्योरी के बारे में। क्या डिस्कस किया था कि डिवाइन थ्योरी का मतलब है कि दैवी सिद्धांत, दैट मीन्स द किंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, देयरफॉर व्हाटएवर ही इज डूइंग शुड बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल, उसे जनता को स्वीकार करना चाहिए, और जनता उसे स्वीकार करती थी, कोई राजा के विरोध नहीं करता था। लेकिन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फॉल ऑफ बेस्टिल जब हुआ, बेस्टिल के किला को जब तोड़ दिया गया, तो लगने लगा कि अरे कुछ भी संभव है, और ये भी हो सकता है कि हम क्या करें, राजा को हटा करके और शासन सत्ता अपने नियंत्रण में भी ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये भी बहुत कॉमन चीजें हैं, और वो की जा सकती है हमारे समाज में, जो हमें बिल्कुल असंभव लग रहा है। यूरोप, in many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controlled social power began to be discussed. पूरी दुनिया में ही, लगभग यूरोप में भी, एशिया में भी नई नई विचारधाराएं उभर कर आ रही थी, और लोगों के मन में विचार आ रही थी कि इंडिविजुअल राइट्स, वही इंडिविजुअल राइट्स बेटा अब हम लोग फंडामेंटल राइट्स के रूप में देखते हैं। इंडिविजुअल राइट्स का मतलब क्या है? व्यक्तिगत अधिकार। इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति को, और राइट्स मतलब अधिकार, लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। और ये सारे अधिकार, सब चीज गायब थे जब तक क्लर्जी और नोबल्स को प्रिविलेज दिया गया था। तो अब ये इंडिविजुअल राइट्स की भी विचारधाराएं उभर करके आई, और जिसके लिए लोग डिमांड करने लगे। एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगन टू बी डिस्कस्ड, और इसके ऊपर काफी चर्चाएं होने लगी कि सोशल
जो पावर है, समाज में जो अधिकार है, वो केवल नोबल्स और क्लर्जी तक सीमित ना रहकर कॉमन्स को भी मिलना चाहिए। हर एक व्यक्ति का अपना अधिकार है और उनको भी ये अधिकार दिया जाना चाहिए। इस पर भी काफी चर्चाएं गर्म हो गई। इन इंडिया, राजा राम मोहन रॉय एंड डिरोजियो, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, विवियन डिरोजियो एक बहुत अच्छा हमारे इंडिया के बहुत बढ़िया क्रांतिकारी के रूप में थे, रिवॉल्यूशनरी के रूप में थे। तो इन दोनों को भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया फ्रेंच रेवोल्यूशन। These two people were also influenced by the French Revolution. इन लोगों ने भी इसके बारे में बातें की, हमारे यहाँ भी इसके बारे में चर्चा की गई। Talk to the significance of the French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या महत्व है? सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व। उस महत्व के ऊपर भी हमारे यहाँ भी दार्शनिकों ने, फिलोसफर्स ने चर्चाएं की, काफी उसके ऊपर बहस हुआ कि बिल्कुल सही है, हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए। कब तक हम किसी इंसान को उसके अधिकारों से वंचित रखेंगे? उसने भी जीवन पाया, उसको भी जीवन जीने का हक है, फिर हम क्यों उसे छीन कर रख रहे हैं, क्यों हम उसे वंचित रख रहे हैं? बिल्कुल उसे इंडिविजुअल राइट्स दिए जाने चाहिए। इन सारे विचारधाराओं पर इवन ये तो बात कहाँ हो रही थी, ये सारे इवेंट्स कहाँ हो रहे थे? यूरोप में। लेकिन इसका प्रभाव एशिया में, अफ्रीका में, माने दुनिया के विभिन्न भागों में भी पड़ रहा था। The development in the colonies in turn reshaped these ideas of societal change. और इस वजह से जहां भी कॉलोनीज थी, कॉलोनीज तो ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज ने ही बना के रखा था, तो अमेरिका तो कॉलोनी से लड़ रहा था और लड़ने के बाद अपने आप को फ्री घोषित कर दिया, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया उसका। कब? वो तो उसके 18th सेंचुरी में ही हो गया, उसी समय जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। लेकिन बाकी जो कॉन्टिनेंट्स थे, जैसे अफ्रीका में बहुत सारे कॉलोनीज बना करके इन लोगों ने रखा था, यूरोपियन लोगों ने, फिर इंडिया में भी, तो इन सारे कॉन्टिनेंट्स में भी अब आवाज बुलंद होने लगी। कॉलोनी के खिलाफ लोग लड़ाई करने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार होने लगे। Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. लेकिन यहाँ एक बात और भी है, नॉट एवरीवन, हर कोई नहीं। क्यों हर कोई नहीं? अब राजा थोड़ी चाहेगा कि मेरा अधिकार छीन लिया जाए, कोई नोबल चाहेगा क्या, कोई क्लर्जी चाहेगा क्या कि हमारे अधिकार ले लिए जाए और जो हम लोग ऐशो आराम कर रहे हैं वो छीन करके कॉमन्स को दे दिया जाए? तो हर कोई नहीं, लेकिन कुछ वर्ग जो थे वो बहुत ज्यादा इसके लिए प्रयासरत थे, लेकिन हर कोई नहीं था। हर कोई नहीं था में भी आपको ये सोचना है कौन नहीं था, तो वो लोग जिनको प्रिविलेज मिलता था, सिंपल। ओके, क्या कहा गया? नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। कंप्लीट माने परिवर्तन चाहते थे, ट्रांसफॉर्म चाहते थे, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एवरीथिंग इज व्हाट? चेंजेबल। और प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। यदि हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, वरना हम ही दोषी ठहराए जाएंगे। तो लोगों को भी एहसास था कि चेंज तो होना ही चाहिए सोसाइटी में, लेकिन पूर्णतः परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि चेंजेस आए, लेकिन कैसे आए? धीरे धीरे, ग्रेजुअली। तो कई तरह के थिंकर्स थे वहां, कई तरह के फिलोसफर्स थे, कई तरह के पीपल थे, जैसे हम ही लोग हैं। एक जगह हम जब 10 लोग बैठते हैं तो क्या 10 लोगों का विचार एक जैसा होता है? क्या 10 लोगों की पसंद एक जैसी होती है? सबकी विचारधाराएं अलग होती है। तो उस समय भी बहुत सारे लोग थे जिनकी फीलिंग थी कि हाँ ट्रांसफॉर्मेशन तो चाहिए, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए। Responses varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift, to those who wanted a restructured society radically. कुछ लोग जो थे जो एकदम तीव्र परिवर्तन चाहते थे, कुछ चाहते थे कि हाँ चेंज तो होना चाहिए लेकिन धीरे धीरे धीरे। ये धीरे धीरे चेंज वाले कौन थे? कंजर्वेटिव्स। और तीव्र परिवर्तन रेडिकल्स। रेडिकल्स कौन थे? तो ये वही कॉमन के जो बहुत ही लोअर वाले थे क्लास के लोग, वो चाहते थे कि तीव्र परिवर्तन चाहिए। अभी पढ़ोगे उसके बारे में, इसके बाद ही अगला टॉपिक है लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो अब यहाँ पे देखा जाए ये कौन है, इनको हम क्यों इस नाम से पुकारते हैं? Some were conservatives, others were liberals or radicals. What did these terms really mean in the context of time? समय के अनुसार
इनका भी अर्थ बदलता रहता है। उस समय जब क्या हम पढ़ रहे हैं अभी, हम पढ़ रहे हैं रशियन रिवॉल्यूशन कब हुई थी, 1917 में। तो इसके पहले सोसाइटी में क्या कंडीशंस थे, किस तरीके की परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में हम लिबरल्स किसे कहेंगे, रेडिकल्स किसे कहेंगे, कंजर्वेटिव्स किसे कहेंगे, अब यहाँ वी हैव टू डिस्कस। What did these terms really mean in the context of the time? What separated these strands of politics and what linked them together? कौन सी चीजें थी, कौन सी बातें थी जो इन लोगों को जोड़ दिए और जिसके वजह से ये सब जुड़ गए और सब एक रास्ते पे ही चलना शुरू कर दिए? We must remember that these terms do not mean the same thing in the all context of at all the times. वही चीज जो अभी आपसे हमने कहा कि हर समय परिस्थिति के अनुरूप इनका अर्थ बदलता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि उस समय जो अर्थ था वो आज भी है। उस समय हो सकता है इसके टर्म समथिंग डिफरेंट हमें बताते हो, आज उसे हम अलग कंटेक्स्ट में देखते हैं तो उसके टर्म्स के मीनिंग चेंज भी हो जाए। उस समय इनका मतलब क्या था, चलिए इसको पढ़ते हैं। We will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century and see how they influence change. Then we will focus on one historical event in which there was an attempt at a radical transformation of society. Through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century. अब उसी चर्चा के दौरान, उसी डिस्कशन के दौरान इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि एक ऐसी विचारधारा, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जहां भी किसी वर्ड के आगे ISM लग जाता है तो उसको हम लोग आइडियोलॉजी कहते हैं। डू यू रिमेम्बर, याद है ना? कल हम लोगों ने बात किया था कि आइडियोलॉजी जैसे जैसे बनती जाती है, लोगों की विचारधाराएं अलग अलग होती जाती, जैसे कि नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, सोशलिज्म समाजवाद, लिबरलिज्म उदारवाद, ये अलग अलग तरह की धाराएं, ये क्या है, अलग अलग तरह की विचारधाराएं हैं। और इस विचारधारा को जो प्रोपाउंड करने वाले हैं, जो प्रतिपादित करने वाले हैं, जो देने वाले हैं लोग हैं, वो अपने अपने विचारों को लिखते हैं, अपने अपने फिलॉसफी को लिखते हैं और लोग उनसे इंस्पायर्ड होकर के उसे फॉलो करते हैं। तो इन सारी विचारधाराओं की वजह से पूरे यूरोप में उथल पुथल मच गई थी और उनमें से ही एक विशेष विचारधारा का उदय हुआ जिसने पूरे दुनिया में हलचल मचा दी। वो कौन सी विचारधारा थी? सोशलिज्म। ये है क्या? तो वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट दैट इन द प्रीवियस क्लास यस्टरडे। सोशलिज्म क्या है? तो समाज जो है उसके अंदर समानता होना चाहिए। दैट मीन्स कोई भी इंडिविजुअल बहुत ज्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने अंडर में न रखे, जो भी प्रॉपर्टी है उसको सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाना चाहिए। ऐसा विचारधारा क्यों आया? क्योंकि कुछ लोग बहुत ही अमीर होते जा रहे थे, कुछ लोग काफी गरीब होते जा रहे थे, उनका जीवन स्तर दिनों दिन खराब ही होता जा रहा था, बद से बदतर होता जा रहा था। तो ये विचार आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर वो भी इंसान है, उन्हें भी जीने का हक है, उनकी भी कुछ जरूरतें हैं, उसके ऊपर भी विचार किया जाना चाहिए। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि समाज के सभी लोग समान रूप से रहें। और इसी विचारधाराओं को बढ़ाते हुए ये नई तरह की विचारधारा उभर करके आई जिसे सोशलिज्म कहा गया। और ये सबसे ज्यादा प्रभावित किया रशिया को, और रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ, जो चेंज हुआ, वो सोशलिज्म को ही सबसे बड़ा मुद्दा मानता है। हम यहाँ पढ़ेंगे कि कैसे ये विचारधाराएं बन करके आई और कैसे रशियन रिवॉल्यूशन का ये एक बहुत बड़ा कारण बना। Students, here we have to discuss about the topics liberals, radicals and conservatives. यहाँ पे हम लोगों ने कुछ points को लिखा भी है। We have, I have also mentioned here some points which are prominent to know such type of different topics, terms. Liberals कौन थे? तो आप यहाँ अभी हम लोग पढ़ेंगे भी, इसमें ये सारे points उभर करके आएंगे। यानी कि आपको ये ध्यान देना होगा कि पहला चीज क्या है? टॉलरेंस ऑफ रिलीजन्स। यस्टरडे वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट दिस कि जो लिबरल्स थे उनका मानना था कि जो भी धर्म के लोग हैं
उनको समान तरीके से अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार मिलना चाहिए। हम लोगों ने इस पे भी चर्चा किया था कि यूरोप में ज्यादातर लोग क्रिश्चियन ही हैं, लेकिन उस भी क्रिश्चियनिटी में कई सेक्ट्स हैं। जैसे एक सेक्ट है प्रोटेस्टेंट जिनको कहते हैं, एक सेक्ट है जिसको हम लोग कैथोलिक्स कहते हैं, एक है जिसको हम ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल वेर लिविंग एट दैट टाइम इन यूरोप, और इन सब लोगों की अपनी अपनी पंथ थे, अपनी अपनी विचारधाराएं थी जिसको मान करके ये लोग चलते थे। और यहाँ इस चीज को कहा गया कि जो लिबरल्स थे वो कहते थे कि कोई भी किसी भी धर्म को फॉलो करे, किसी सेक्ट का हो, क्या दिक्कत है, सब लोगों को सोसाइटी में रहने का अधिकार है। दूसरा चीज क्या था, अपोज अनकंट्रोल्ड पावर्स ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। डायनेस्टिक रूलर्स, ये डायनेस्टिक रूलर्स का मतलब क्या है, व्हाट इज दिस? डायनेस्टिक मतलब वंश के आधार पर, वंशानुगत, और रूलर्स मतलब शासक। तो शासन करने का अधिकार किसको था? जो उसी वंश के थे, जो उसी डायनेस्टी के थे, केवल वही किंग बन सकते थे, पावर उन्हीं के हाथ में रहता था, और आजीवन वही सारे पावर्स को, सारे प्रिविलेज को एंजॉय करते जाते थे, जिसको हम लोग कहते हैं बर्थ प्रिविलेजेस। जो चर्च के थे, जो क्लर्जी से रिलेटेड थे, बस उस क्लर्जी के घर में जन्म ले लिया, अपने आप बर्थ से उन्हें प्रिविलेजेस मिलने शुरू हो गए। तो ये सारी चीजें जो थी, ये इन लोगों को लगता था ठीक नहीं है। तो क्या किया इन लोगों ने? अपोज्ड, विरोध किया। अनकंट्रोल्ड पावर्स, उसमें किसी का नियंत्रण ही नहीं था, अपने आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते थे। तो इन लोगों को लगा कि ये डायनेस्टिक रूलर्स के ये जो अनकंट्रोल्ड पावर है, इसको भी नियंत्रित किया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं इन पर भी नियंत्रण होना चाहिए, ताकि वो अपने पावर्स का गलत यूज ना करे, मिसयूज ना कर सके। और तीसरा है सेफ गार्ड राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, जो हम लोग आज फंडामेंटल राइट्स के रूप में देखते हैं। तो जो भी व्यक्ति है उसके अधिकारों का भी सुरक्षा किया जाना चाहिए। आज हर किसी को जीने खाने का अधिकार है, जबरन हम उसको कहें कि नहीं तुमको मेरे घर में काम ही करने का अधिकार, मेरी इच्छा तुम्हें मैं खाने को दूं या ना दूं, तो ये तो बेकार है, गैर कानूनी हो जाएगा, उसके फंडामेंटल राइट का एक्सप्लॉइटेशन होगा। तो इसके तहत हम लोगों को जैसे फंडामेंटल राइट दिया गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। पहले लोग बेगार करते थे, बेगार मतलब वर्क विदाउट पेमेंट, इन सब चीजों को एबॉलिश कर दिया गया। तो इसकी आवाज उसी समय उठनी शुरू हो गई थी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। तो ये लोग जो थे, लिबरल्स जो थे, लिबरल का मतलब ये है जिसकी विचारधारा स्वतंत्र हो, लिबर्टी का मतलब क्या है? फ्रीडम। तो ये फ्री मेंटेलिटी वाले लोग थे, इन लोगों को लगता था कि हर किसी को अधिकार मिलना चाहिए। एक बात से ये अलग है, यहाँ आपको ध्यान देना, भी हम लोग पढ़ेंगे तो फिर उसको भी अंडरलाइन करेंगे। ये चाहते थे कि चुनी हुई सरकार बने, लेकिन ये वुमेन के वोटिंग राइट के खिलाफ थे, वुमेन सफ्रेज मूवमेंट के खिलाफ ये थे, प्लस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के भी ये फेवर में नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि इनको लगता था कि भाई सरकार को चलाने के लिए खर्चा आएगा ना, खर्चा कहाँ से आएगा? तो ये तो तभी होगा जब अमीर लोग टैक्स देंगे। तो इनको लगता था कि जो केवल अमीर हैं, पैसे वाले हैं, वही केवल वोटिंग राइट के अधिकारी हैं। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। रेडिकल्स क्या है? तो रेडिकल्स सबके लिए वोटिंग राइट चाहते थे। वो चाहते थे कि नहीं भाई, सब चाहे धन हो या ना हो, धन से क्या मतलब, मन है ना, विचारधाराएं हैं, हमारे पास अनुभव है, क्यों नहीं हम वोट दे सकते हैं। महिलाओं के वोटिंग राइट के भी पक्ष में वो थे, कौन? रेडिकल्स। और कंजर्वेटिव्स कौन थे? तो ये तो वही राजा महाराजा लोग थे, लॉर्ड्स थे, जो पुराने समय से शासन का भोग किए हैं। वो चाहते ही नहीं थे कि हमारी पद, हमारी सत्ता हमारे हाथों से जाए। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि इतना तेजी से परिवर्तन है। वो चाहते थे हाँ भाई परिवर्तन तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, जनता एकदम तैयार हो गई है आइडियोलॉजी के साथ और हमें उखाड़ फेंकेगी। तो परिवर्तन तो होगा ही, इसको नकारा नहीं जा सकता है, वो होगा ही, कितना भी हम अवॉइड करेंगे वो नहीं रुकेगा, चेंज आएगी ही, जनता अपने अधिकारों की मांग करेगी, और हम ज्यादा क्रुद्ध होंगे तो हमें उखाड़ फेंकेगी, हमें मार डालेगी, जैसे लुई 16 को इन लोगों ने मार दिया। तो चेंज तो जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे आए परिवर्तन, ग्रेजुअली आए, शिफ्टिंग हो सोसाइटी में आइडियोलॉजी के, लेकिन ग्रेजुअली शिफ्टिंग आए, ये ग्रेजुअल शिफ्ट के फेवर में वो थे। लेट अस
read about that topic. What is given here? Liberals, radicals and conservatives. One of the groups which looked to change society were the liberals. एक ग्रुप इसमें से कौन था? लिबरल्स, जिसको हम लोग कहते हैं जो उदार विचारधाराओं के थे. लिबरल्स वांटेड अ नेशन व्हिच टॉलरेट ऑल रिलीजन्स. वी शुड, देखो रिलीजन्स दे दिया है बेटा, अंडरलाइन कर लेना इसको. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये लिबरल्स के बारे में यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है 3 नंबर का तो 3 पॉइंट्स लिखोगे, 5 नंबर का तो इसमें से 5 पॉइंट निकालोगे. 5 नंबर का नहीं पूछेगा, 3 ही नंबर का मैक्सिमम पूछेगा या 1 नंबर का पूछेगा. तो आपको ये सारे पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं. ओके, चलिए आगे. We should remember that at this time European states usually discriminated in favor of one religion or another. Britain favored the Church of England, Austria and Spain favored the Catholic Church. क्या बताया जा रहा है? ब्रिटेन जो था वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर करता था, यानी कि वो लोग प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी के सेक्ट के फेवर में थे. और ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक, ये लोग रोमन कैथोलिक चर्च के फेवर में थे. उसी तरीके से लिबरल्स आल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स. ये जो अभी दिया है दूसरा पॉइंट, ये भी है, यहाँ अंडरलाइन करो इसको. They wanted to safeguard the rights of individual against government. इसे भी अंडरलाइन करना. ये चाहते थे कि safeguard the rights of individual, लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहते थे अगेंस्ट गवर्नमेंट, यानी कि राजा जो है उनके अधिकारों का हनन कर रहा है. जो भी सरकार है, जिसकी भी सरकार है, यदि वो जनता के अधिकारों का जरा भी ख्याल नहीं रख रही तो वो कैसी सरकार है? उसे क्या अधिकार है सरकार बनने का? तो इसीलिए ये लोग जनता के अधिकारों का, इंडिविजुअल राइट्स को सुरक्षित रखने के पक्षधर थे. They argued for a representative elected parliamentary government. अंडरलाइन कर लेना इसको. Subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. देखो ये जुडिशियरी के भी फेवर में थे. तुम लोगों के साथ कल चर्चा के दौरान इस बात पे चर्चा हुई थी कि मॉन्टेस्क्यू कहता था कि ये तीनों ही जो अंग हैं, पावर्स ऑफ सेपरेशन होना चाहिए. एग्जीक्यूटिव अलग हो, लेजिस्लेचर अलग हो और जुडिशरी अलग हो, और सब एक दूसरे को चेक करें ताकि चेक होता रहे और बैलेंस बना रहे. कोई भी अपने पावर का अननेसेसरीली मिसयूज ना कर सके. फिर भी एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है, अंडरलाइन कर लेना. हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, लेकिन वो डेमोक्रेट्स नहीं थे. दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे. दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? राइट टू वोट. हाँ, एवरी सिटीजन, इसीलिए यूनिवर्सल दिया है. सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब सभी लोगों को, और एडल्ट मीन्स वयस्क, दोज हु आर अबव इन आवर कंट्री 18 इयर्स, और फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट. ये इसके फेवर में नहीं थे. बाकी सब तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के फेवर में नहीं थे. They felt men of property. देखो अंडरलाइन करना है इसको. ये क्या सोचते थे कि वो लोग जिनके पास संपत्ति है, men of property mainly should have the vote. कौन वोट देगा? केवल वही पुरुष, महिला नहीं, केवल पुरुष जिनके पास धन है, जिनके पास वेल्थ है. They also did not want the vote of women. वो महिलाओं के भी वोट के खिलाफ थे. उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि महिला को भी वोटिंग राइट दिया जाए. इन कॉन्ट्रास्ट, उसके विपरीत, विरोध में, रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन. देखो इसको भी अंडरलाइन करो. ये किसका है? रेडिकल्स का है. क्या चाहते थे कि सरकार वैसी बने जो देश के लोगों की मेजॉरिटी की पसंद हो. Many supported women suffragette movement. बहुत सारे लोगों ने वुमेन वोटिंग राइट को भी, जो महिला आंदोलन कर रही थी कि हमें भी वोटिंग राइट चाहिए, उनका भी फेवर किए. Unlike liberals, they oppose the privileges of great landowners and wealthy factory workers. They were not against the existence of private property, but disliked concentration of property in the hand of a few. ये कहते थे कि धन एकत्रित करना बुरा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के हाथ में धन एकत्रित हो, इसके वो विरोध में थे. समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत? अगला टॉपिक पढ़ के अभी तुम लोगों से पूछेंगे. जिसको जो डाउट है वो रेडी रखना बेटा, बिकॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम दिखाने लगा है. कंजर्वेटिव्स वेर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स. जो कंजर्वेटिव थे वो इन दोनों के ही
विरोध में थे. After the French Revolution, however, even conservatives has opened their minds to the need for change. जब रिवॉल्यूशन हो गया, इनको लगने लगा कि नहीं हम लोग बदलेंगे तो हम ही को ये सब बदल देंगे. जैसे कि किसके साथ हुआ? लुई 16 के साथ हुआ. इसीलिए माइंड अपना चेंज कर लिए कि हाँ चेंज तो होगा ही, लेकिन क्या चेंज होगा? देखो, अर्लियर इन द 18th century, 18th century मीन्स 1701 से लेकर के 1799 तक. By the earlier in the 18th century, conservatives have been generally opposed to the idea of change. पहले ये परिवर्तन नहीं चाहते थे. But by the 19th century, they accepted that some changes was inevitable, but believed that the past has to be respected and change has to be brought about through a slow process. परिवर्तन चाहते थे लेकिन बहुत धीमे धीमे. Such differing ideas about societal changes clashed during the social and political turmoil and followed the French Revolution. The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of the political tendencies. इस तरह की विचारधाराएं जब आनी शुरू हो गई तो इसी विचारधारा ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक मौका दिया और जिससे क्या हुआ, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो अपने अंजाम तक पहुंचा. और अब हम लोगों को क्या देखना है बेटा? अब देखना है कि मेरे